हेलो वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सब दा बालाजी एजुकेशन पॉइंट ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2021 ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2020 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2018 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ 3 ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈंने ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ज्यादा जानकारी करने वास्ते कॉल करो 9646810103। तो चलो बच्चों लैने अज दा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन तुसी ध्यान नाल देखो। पहले क्वेश्चन च पूछा गया है पंचशील दा जेड़ा विचार है या पंचशील दा जेड़ा समझौता है या सिद्धांत है वो केड़े देश नाल संबंध है। हुण तुसी देखो जेड़ा ये पंचशील टॉपिक है ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन नाम दा एक टॉपिक हुंदा है एसएसटी मास्टर कैडर दे पेपर दे विच। जब थोड़ा पीएस टैट क्लीयर हो जाऊगा उस तो बाद थोड़ा मास्टर कैडर का पेपर देना पऊगा नौकरी वास्ते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। इस समझौते के उत्ते इंडिया वालों देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साइन सीगे, याद रखियो। ते जे पूछा जाए भी इस समझौते के उत्ते चाइना वालों किहदे साइन सीगे? जाओ ZHOU जाओ इनला दे साइन सीगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 1954 च समझौता होया सी तिब्बत के एरिया नूं लैके। इंडिया वालों देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए सी ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖੀਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਓ ਇਨਲਾਈ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? 5 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਆਪਸੀ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। दूसरा सी म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। म्यूचुअल नॉन इंटरफेयर का मतलब की है कि असी एक दूसरे दे देश दे आंतरिक मामलों च दखल अंदाजी नहीं देवांगे। नेक्स्ट तीसरा पीस को एग्जिस्टेंस, शांति बनी रहे इस चीज दे उत्ते असी जोर देवांगे, ठीक है जी। चौथा समझौता की सी साडे कोले? म्यूचुअल नॉन एग्रैशन। म्यूचुअल नॉन एग्रैशन का मतलब कदे भी असी एक दूसरे दे देश दे प्रति अग्रैसिव नीति, अग्रैसिव यानी कि लड़ाकू नीति नहीं अपनावांगे। पंजवां ते आखिरी समझौता की सी बच्चों, ध्यान नाल सुनियो। इक्वैलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। एक दूजे नूं बराबरी का स्थान देवांगे, हमेशा यह जी नीतियां बनावांगे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ 5 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
आई होप ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं। सैकेंड क्वेश्चन है, कहता जी आइडेंटिफाई करो नॉन फूडर क्रॉप। आइडेंटिफाइड नॉन फूडर क्रॉप। नॉन फूडर क्रॉप किहड़ी हुंदी है बच्चों, जिहड़ी असी खा नहीं सकते, असी आपदे पर्सनल यूज वास्ते इस्तेमाल करते हैं। हुण जिवें वीट है, गेहूं है, गेहूं असी खाने आ, चावल असी खाने आ, ये सारी दी सारियां फूडर क्रॉप बजणगियां, यानी कि खाण वालियां फसलां बजणगियां। उरे पुछया गया कि गिवन ऑप्शन दे विचों नॉन फूडर क्रॉप किहड़ी है। ठीक है, सब तो पहला जूट आ जाओ। जूट जिन्हों असी पड़सन कहने आ। ठीक है, साडे भूरे रंग की बोरी बनती है जिहदे विच असी चावल या गेहूं स्टोर करते हैं। ठीक है, इनू भी असी खा नहीं सकते, ये भी एक नॉन फूडर क्रॉप है। ये की है, एक नॉन फूडर क्रॉप है। जूट है जिहड़ा सब तो ज़्यादा याद रखियो वैस्ट बंगाल च हुंदा है, सब तो ज़्यादा पश्चिम बंगाल च हुंदा है। ते जूट नूं असी गोल्डन फाइबर भी कह दिंदे आ। गोल्डन फाइबर का भी दर्जा दिता गया। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होया पीएस टेट दे विच कि गोल्डन फाइबर किहनूं कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर है जिहड़ा जूट नूं कह दिता जाता है। इस तो इलावा जूट नूं ब्राउन गोल्ड, भूरा सोना भी कह दिता जाता है, ब्राउन गोल्ड भी कह दिता जाता है। हुण रबड़ आ जाओ। रबड़ का भी इस्तेमाल असी जिवें चप्पल वगैरह बनाने च करते हैं, शूज़ वगैरह बनाने च करते हैं, भी नहीं खा सकते। ठीक है, रबड़ है जिहड़ी सब तो ज़्यादा केरला च हुंदी है, याद रखियो। ठीक है, केरला नूं असी लैंड ऑफ स्पाइसिस, मसालिया का घर कह दिंदे आ। ठीक है जी, केरला दे विच एक होर चीज़ बहुत ज़्यादा हुंदी है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, एक्सट्रा गल्लां लिखवा रहे हैं जिहड़ियां उहनूं जरूर याद कर लियो। नैक्सट आ जाओ कॉटन। कॉटन नूं भी तुसीं खा नहीं सकते, कॉटन जिन्हों तुसीं कपास कहने हो या नरमा कह दिंदे हो। ठीक है बच्चों, क्लीयर है। कॉटन है जिहड़ा, इहदी खेती च नंबर 1 ते कौन है इस समय? गुजरात है। गुजरात है जिहड़ा कॉटन की खेती दे विच इस वक्त नंबर 1 ते चल रहा है, याद रखियो। ते कॉटन हमेशा काली मिट्टी च सब तो वधिया हुंदा है, ब्लैक सॉइल दे विच सब तो ज़्यादा हुंदा है। ये गल भी तुसीं एक्स्ट्रा याद रखनी है। उन्होंने नॉन फूडर क्रॉप पूछे, जूट भी नॉन फूडर क्रॉप है, रबड़ भी ते कॉटन भी। तेरा आंसर आ जाऊगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगे चलते हैं। कहता व्हाट इज द रिकॉर्डेड एरिया, व्हाट इज द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन पंजाब। पंजाब दे विच किन्ने प्रतिशत जंगली खेता पाया जाता है, ये क्वेश्चन उन्हें पूछे। हुण देखो, पंजाब का जिन्ना भी 100% एरिया है, 100% एरिया है, उहदे विचों 6.1% एरिया पंजाब दे विच फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, पंजाब दे विच जिन्ना भी एरिया है उहदा 6.1% ही की है फॉरेस्ट एरिया। पूछा जाए इंडिया दे विच मैक्सीमम फॉरेस्ट एरिया कित्थे पाया जाता है, तो इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा जंगली खिता मध्य प्रदेश च पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू याद रखियो। तो यदा ऑप्शन आ जाऊगा थोनू ए आंसर। पंजाब विच कितना जंगली खिता रिकॉर्ड किया गया? लगभग 6.1% रिकॉर्ड किया गया। ये गल तुसी याद रखनी है। ठीक है जी। हुण फॉरेस्ट एरिया हुंदा की है, या फॉरेस्ट एरिया कित्थे हुंदा है? जिथे हैवी रेन होवे, बहुत ज़्यादा मीह पैंदा होवे ते हैवी टैंपरेचर, चंगा तापमान हुंदा होवे, उत्थे ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया पैदा हुंदा है। याद रखियो, हैवी रेन होवे, हैवी टैंपरेचर होवे, उत्थे ज़्यादातर चांसिस हुंदे ने जंगल दे पैदा होंदे। दुनिया के जिहड़े सब तो डेंस हुंदा संघने जंगल ने, उन्हां दा नाम है एमाजोन फॉरेस्ट। दुनिया के जिहड़े सब तो संघने जंगल ने, डेंस जंगल ने, उन्हां दा नाम है एमाजोन फॉरेस्ट। मन्निया जाता है कि पूरे वर्ल्ड दी, पूरे संसार की 20% ऑक्सीजन, पूरी धरती ते जिन्नी ऑक्सीजन है जिहड़े पेड़ छड्डदे ने, तो 20% ओदी ऑक्सीजन कल्ली एमाजोन के जंगलों तो आती है। इसलिए एमाजोन के जंगलों नूं लंग्स ऑफ अर्थ, धरती के फेफड़े कहा जाता है। लंग्स ऑफ अर्थ, धरती के फेफड़े कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पीएस टेट पेपर 1 च इन्वायरमेंट च रिपीट हुए है ना। इन्हां विचों किहड़े जंगल नूं लंग्स ऑफ अर्थ, धरती के फेफड़ियां के तौर पर जानिया जाता है, तो वह हैगे ने बच्चों थोड़े कोले एमाजोन फॉरेस्ट। हुण जे पूछा जाए इंडिया च टोटल किन्ने % फॉरेस्ट एरिया है, इंडिया के टोटल एरिया का 24% एरिया जिहड़ा लगभग वो फॉरेस्ट के अंदर है। पंजाब का 6.1%, इंडिया का लगभग 24% एरिया है जिहड़ा फॉरेस्ट के अंडर है। पूरी दुनिया के सब तो डेंस फॉरेस्ट जिहड़े ने वो एमाजोन फॉरेस्ट ने। एमाजोन फॉरेस्ट जिहड़े ने ब्राज़ील देश च पाए जाते हैं। ब्राज़ील देश है जिहड़ा
ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫੋਰੈਸਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਰੂਵ ਫੋਰੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੰਗਰੂਵ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਮੰਗਰੂਵ ਫੋਰੈਸਟ। ਮੰਗਰੂਵ ਫੋਰੈਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਗਰ, ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਗਰੂਵ ਦੇ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਮੰਗਰੂਵ ਦੇ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने थर्ड क्वेश्चन ਕਰਵਾਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ A ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 6% ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ NCERT ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं जी। चौथा क्वेश्चन है यह अपने कोले वातावरण की परतां उत्ते है, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर के उत्ते ही क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होंदा है, CTET च भी रिपीट होया है, PS TET, H TET, UP TET बहुत रिपीट होंदा है। सब तो पहला तो ओजोन हुंदा की है? जद ऑक्सीजन के 3 अणु आपस च जुड़ जाते हैं ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UV ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। UV ਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਾ ਬੈਂਗਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। UV ਰੇਜ਼ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, UVA, UVB ਤੇ UVC, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ UV ਰੇਜ਼ ਦੀ C ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ A ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸ ਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ UV ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ कि ओजोन ਜਿਹੜੀ परत है वो ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ, ਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਮੱਧਿਆ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਐਗਜ਼ੋਸਫੀਅਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਦਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਨ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਣਾ, ਸਟੋਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਲ ਸਟੋਮ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂधी ਚੱਲਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣਾ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪਲੇਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੈਟ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲੇਅਰ 'ਚ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਣੀ ਪਊ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲਡੈਸਟ ਲੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਹੌਟੈਸਟ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि आ धरती की सतह, आ वाली चीज है जी धरती की सतह है। जे तो मैं 25 तो 30 किलोमीटर के विचकार जाऊंगा तो मैनू केड़ी लेयर मिलूगी बच्चों? ओजोन लेयर मिलूगी। आई होप थोनू ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा। क्लीयर है जी। नैक्सट 5th क्वेश्चन वाली बच्चों आप अगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन वाली बढ़ रहे हैं। कहता जी डेसीबल है जिहड़ा, डेसीबल एक यूनिट है, कहता है किहदा यूनिट है? डेसीबल दे विच असीं किहनूं मापदे? हुण देखिया जावे असी SST कंबीनेशन चूज किया है ना, या इन्वायरमेंट जो होगा वो किया है, पर ये क्वेश्चन इन्होंने ये फिजिक्स का पूछ लिया। कई बार PS टेट वाले आई करते हैं, अपने सिलेबस तो थोड़ा जा बाहर जाके 2-4 क्वेश्चन पूछन तो ये मजबूर नहीं आपकी आदत तो, ठीक है। तो पिछले साल के पेपर जो तुम सॉल्व नहीं करते तो है जी जो उटपटांग क्वेश्चन ने जो SST के नाल रिलेट नहीं होंगे वो थोनू फिर सॉल्व करने च दिक्कत आऊगी, याद रखियो। पहला क्वेश्चन चलते हैं अगे 5वें ते। कहना जी डेसीबल किनू मैजर करने वास्ते इस्तेमाल किया जाता है? डेसीबल छोटा डी बड़ा बी नाल रिप्रजेंट होंदा है। ये मैजर करता है साउंड नू, साउंड यानी कि नॉइस नू, ठीक है जी। साउंड नू मैजर करने वास्ते जिहड़ा यूनिट इस्तेमाल होंदा है उहनू असीं डेसीबल कहने हैं, यानी कि 5th दा ऑप्शन बी आऊगा, याद रखियो। शोर नू मैजर करने वास्ते ये होंदा है। बच्चों एक यूनिट होंदा है जिन्हों असीं बोलते हैं, एक यंत्र होंदा है जिन्हों असीं बोलते हैं पायरोमीटर। एक यंत्र होंदा है बच्चों जिन्हों असीं बोलते हैं पायरोमीटर, PYROMETR। पायरोमीटर की करता है? ये मैजर करता है हाई टैंपरेचर, उच्च तापमान नूं मापन वास्ते मैजर करता है हाई टैंपरेचर, ठीक है जी। एक सैस्मोग्राफ होंदा है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सैस्मोग्राफ होंदा है, ठीक है। सैस्मोग्राफ है जिहड़ा ये अर्थक्वेक दी, यानी कि चाहे भूचाल कह लो, चाहे ज्वालामुखी वोल्केनो कह लो, चाहे भूचाल कह लो, चाहे वोल्केनो कह लो, दोनों की इंटेंसिटी मैजर करने वास्ते काम आता है। इंटेंसिटी मतलब कितना जोरदार भूचाल आया है, ठीक है। पायरोमीटर मैजर करता है हाई टैंपरेचर, सैस्मोग्राफ मैजर करता है भूचाल और ज्वालामुखी की इंटेंसिटी नूं। एक हुंदा तुहाडे कोले रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल है जिहड़ा अर्थक्वेक हो जे, अर्थक्वेक होवे, चाहे होवे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, दोनों की नमैरिकल वैल्यू दसदा है, रीडिंग दसदा है। जिवें आपां बहुत बार सुनते हैं न्यूज़ दे विच कि रिक्टर स्केल ते अर्थक्वेक की रीडिंग 7.2 रही, ठीक है। कितनी तीव्रता दा है वो सैस्मोग्राफ दसू, ते कितनी नमैरिकल वैल्यू है, मैथ दे विच डिजिटल वैल्यू कितनी है, उहदे वास्ते जिहड़ा यंत्र इस्तेमाल हुंदा उहनूं असीं रिक्टर स्केल कहते हैं। एक यंत्र हुंदा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मैं पिछली वीडियो दे विच भी इहदे बारे दस्सिया सी, ये PS टेट च 2 बारी पूछा गया। यह मैजर करता है यानी कि तोलदा है फोर्स यानी कि बल अते डायरेक्शन, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एयर, फोर्स एंड डायरेक्शन, फोर्स एंड स्पीड ऑफ विंड, फोर्स एंड डायरेक्शन नहीं करता, फोर्स एंड स्पीड, कितना बल है ते कितना ज़्यादा ओदी स्पीड है। इनू मैजर करने वास्ते, हवा नू मैजर करने वास्ते जिहड़ा यंत्र इस्तेमाल हुंदा है उहनूं असीं एनीमोमीटर कहने हैं। नैक्सट है बच्चों साडे कोले 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन फिर इन्वायरमेंट के उत्ते है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एग्रीमेंट है जिहड़ा कहंदा वो किहड़े देश नाल संबंधित है? पहली गल तो आ वाली डेट गलत है, 1977 नहीं आना, पिछली बार बोनस नंबर दिते गए सी, ये पूरे 1997 होगा। पहली गल तो ये याद रखियो। पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल जिहड़ा सी वो 1992 दे विच सामने आया सी। क्योटो एक शहर है जापान देश दे विच। क्योटो एक शहर है किहड़े देश दे विच? जापान देश दे विच। क्योटो प्रोटोकॉल है जिहड़ा वो क्यों होया सी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਾਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ
अर्थ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। यानी कि 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 192 ਦੇਸ਼ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। 1992 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 3 ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਓਟੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲੇ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। याद रखियो, ਇਹਦਾ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ਹੁਣ ग्रीन हाउस गैसेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? जिमें CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, CH4 ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਥੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, N2O ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ग्रीन हाउस गैसेस ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੌਂਟਰੀਆਲ। ਇਹ ਕਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? 16 ਸਤੰਬਰ ਲਗਭਗ 1987 ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ? ਓਜ਼ੋਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 7th क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन च पूछा गया जी साडे कोले धरती की सब तो बाहरली लेयर दसो किहड़ी है। सब तो पहला तो धरती के जिहड़े सब तो अंदरली लेयर हुंदी है उहनूं असीं बोलदे हां कोर। कोर कोर भी 2 हिस्सिਆਂ च वंडी हुंदी है। अंदर वाली नूं इनर कोर यानी कि अंदर वाली कोर कहने ते बाहर वाली नूं आउटर कोर कहा जाता है। ठीक है जी। कोर तो बाद जिहड़ी लेयर हुंदी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੈਂਟਲ। ਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇੜ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਰਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਥਿਨੈਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਕਰਸਟ ਦੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂਟਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਟਲ। ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਰ। ਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੋਰ ਹੈ, ਕੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ, ਇਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਤੇ ਆਇਰਨ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ Ne, ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ Fe, ਨਿਕਲ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ Ni, ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ Fe। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਫੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਫੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰਸਟ। 8 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ। ਲਗਭਗ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਲ, SIAL। ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਲਿਕਾ ਪਲੱਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ।
सिलिका प्लस एल्यूमीनियम, सिलिका प्लस एल्यूमीनियम। एक हुंदा सीमा, SIMA सीमा, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। हुण सियाल कह लो यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमीनियम, सीमा कह लो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, यानी कि ਕਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਲ प्लस सीमा ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगे चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों अगे चलते हैं 8th क्वेश्चन ते। अगले क्वेश्चन च प्यारे बच्चों साडे कोले पूछया गया है, कहंदा जी विच प्लैनेट हैज़ द स्मॉलेस्ट ईयर इन अर्थ टाइम। ठीक है, हुण तुसीं इहनूं पंजाबी च देखो, ये मैंने पेपर चो डिटो टाइप करवाया है, पंजाबी च तो कोई मूँह सिर नहीं बनता। धरती के समय विच किहड़ा ग्रह सब तो छोटा साल है, कोई मूँह सिर नहीं बनता। हुण वो की कह रहे हैं कि भाई मान लो आ साडे कोले सन है, ठीक है, आप साडे कोले अर्थ है, अर्थ जिहड़ी है सूरज के आले दाले एक चक्कर लगभग 365 दिनां दे विच लांदी है, जिन्हों असी धरती का की बोलते हैं, एक साल बोलते हैं। क्लीयर है? कहंदा जी हुण ऐजा ग्रह दसो जिहड़ा धरती वांगू सूरज के चारों पासे एक साल लांदा होवे, पर उहदा जिहड़ा टाइम पीरियड है धरती के मुकाबले सब तो छोटा होवे। हुण तुहानूं पता होना चाहिए है आ सन है, सन तो बाद पहला ग्रह हुंदा मरकरी जिन्हों बुध कहने हो, ठीक है, फिर आंदा साडे कोले वीनस, फिर आंदा साडे कोले अर्थ, फिर आंदा साडे कोले मार्स। सब तो लास्ट च जिहड़ा ग्रह आंदा वो किहड़ा नैपचून। हुण जिहड़ा ग्रह सूरज के नेड़े होगा वो फटाफट सूरज के चारों पासे चक्कर लगा के की करूगा, आपदा एक चक्कर कंप्लीट करूगा। मरकरी नूं धरती के हिसाब नाल सिर्फ 88 दिन लगते हैं सूरज के आले दाले एक चक्कर पूरा करन नूं। नैपचून नूं सूरज के आले दाले एक चक्कर पूरा करन नूं लगभग 165 साल का समय लगता है। किन्ने साल का समय लगता है प्यारे बच्चों? 165 साल का समय लगता है, याद रखियो। तो हुण किहड़ा ग्रह है जिहड़ा धरती के अकॉर्डिंग, जिवें धरती ते साल हुंदे ने उवें ही सूरज के आले दाले एक चक्कर सब तो घट टाइम दे विच कंप्लीट करता है बच्चों? तो उसका आंसर आऊगा 8th का ए, दैट इज योर मरकरी, याद रखियो। ठीक है, मरकरी एक चक्कर 88 दिन च, नैपचून एक चक्कर 65 साल च कंप्लीट, 165 साल च कंप्लीट कर दी है। नैक्सट एक क्वेश्चन आता है भी किहड़ा ऐजा कमिट है, कमिट मतलब धूमकेतु है जिहड़ा हर 76 साल बाद धरती तो दिखाई दिंदा है। धरती तो दिखाई देने वाला 76 साल बाद किहड़ा कमिट यानी कि धूमकेतु है या उल्का पिंड है, उसका नाम है हेलिस कमिट। ये हर 76 साल बाद धरती के नेड़े आंदा ते धरती तो दिखाई दिंदा है। क्वेश्चन आंदा है किहड़े ग्रहां नूं इनर प्लैनेट कहा जाता है? इनर प्लैनेट, ठीक है, इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट वो हुंदे हन जिन्हां दी सतह रॉक यानी कि चट्टानां नाल बनी है, जिहड़े सॉलिड हन, जिहड़े चट्टानां नाल बने ने, जिवें धरती ते चट्टान है। तां जिहड़े पहले 4 प्लैनेट ने, मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि धरती, मार्स यानी कि मंगल, इन्हां 4 प्लैनेटां नूं असी इनर प्लैनेट कहते हाँ। इन्हां 4 प्लैनेटां नूं असी किहड़ा प्लैनेट कहने हाँ बच्चों? इनर प्लैनेट कहने हाँ। बच्चों जे लगे भी मेरी स्पीड तेज है क्योंकि मैंने घट टाइम च बहुत क्वेश्चन कराने होंगे ने, तुसीं इहनूं पॉज कर करके पार्ट्स दे विच देखी चलो। ठीक है जी, नैक्सट हुण बच्चों जब कोई ग्रह सूरज के आले दाले एक चक्कर लगाता है उस प्रतिक्रिया नूं, उस चक्कर नूं रेवोल्यूशन कहा जाता है। की कहा जाता है? रेवोल्यूशन। लेकिन जब कोई ग्रह अपनी एक्सिस, एक्सिस हुंदा है, एक्सिस का मतलब हुंदा धूरा, एक्सिस का मतलब हुंदा धूरा। जब कोई ग्रह अपनी एक्सिस के आले दाले एक चक्कर कंप्लीट करता है उन्होंने असी रोटेशन कहने हैं। उदाहरण के तौर पर धरती अपने धूरे के आले दाले एक चक्कर 24 घंटे कंप्लीट करती है, तो धरती सूरज के आले दाले एक चक्कर 365 दिनों के कंप्लीट करती है। एक बार PS टेट के पेपर च पूछा गया कि धरती के विचाले जे असी एक नीडल यानी कि मेख फसा दीए किसी भी ग्रह के विचाले तो उन्होंने की कहा जाता है? इंग्लिश च एक्सिस, पंजाबी च उस ग्रह का धूरा कहा जाता है। नैक्सट अगे बढ़ते हैं जी। नैक्सट बच्चों अगला लेने आप इस क्वेश्चन च पूछे गए सब तो छोटा महादीप किहड़ा है। पहली गल तो इन्होंने मैंशन करना सी कि यह महादीप खेत्रवल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं।
चलो कोई नहीं दस्या तो आपां दस दांगे, ठीक है। सब तो पहला तो बच्चों सब तो बड़ा महाद्वीप, लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट, महाद्वीप जिहड़ा एरिया वाइज होवे चाहे पुछ लैन पॉपूलेशन वाइज, ठीक है, वो इक्को ही आंसर आऊगा, ਉਹਦਾ नाम है एशिया। एशिया कोले वर्ल्ड की 60% पॉपूलेशन है। एशिया महाद्वीप च पूरी दुनिया की 60% जनसंख्या रहिंदी है तो एशिया कोले पूरी दुनिया का लगभग 30% एरिया। तो दुनिया का सब तो वड्डा महाद्वीप चाहे एरिया वाइज पुछ ले चाहे पुछ ले पॉपूलेशन वाइज एशिया, ठीक है जी। दूसरा दुनिया का दूसरा सब तो वड्डा महाद्वीप है अफ्रीका, चाहे एरिया वाइज पुछ ले चाहे पुछ ले पॉपूलेशन वाइज, ठीक है। इन्नी गल याद रखियो, अफ्रीका च वर्ल्ड की 20% पॉपूलेशन रहिंदी है। अफ्रीका च वर्ल्ड की 15% पॉपूलेशन रहिंदी है, 20% नहीं 15% पॉपूलेशन पूरे संसार की अफ्रीका च रहिंदी है। तो अफ्रीका कोले वर्ल्ड का 20% एरिया है, वर्ल्ड का 20% एरिया है तो 15% की रहिंदी है पॉपूलेशन। अफ्रीका नूं असी डार्क कॉन्टीनेंट भी कहने हाँ, किहड़ा कॉन्टीनेंट, डार्क कॉन्टीनेंट या काला महाद्वीप के नाम से भी जानिया जाता है। हुण बच्चों जे पुछण सब तो छोटा कॉन्टीनेंट एरिया वाइज किहड़ा है, खेत्रफल के हिसाब नाल सब तो छोटा महाद्वीप आस्ट्रेलिया है, ठीक है, जिन्हों अजकल ओशैनिका भी कह दिंदे हन। ते जे पूछा जाए पॉपूलेशन वाइज सब तो छोटा जिहड़ा महाद्वीप है वह अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है मन्निया जाता है लगभग 3000 बंदा ही रहिंदा उरे, क्योंकि ये सारी बर्फ जमी हुई धरती है, ये भी गल याद रखना है। आस्ट्रेलिया महाद्वीप किने डिस्कवर किया सी? आस्ट्रेलिया महाद्वीप लभ्या सी कैप्टन जेम्स कुक नामक व्यक्ति ने। कैप्टन जेम्स कुक नामक व्यक्ति ने आस्ट्रेलिया महाद्वीप नूं डिस्कवर किया सी 1770 दे विच, ये याद रखियो, ठीक है बच्चों। कुछ होर क्वेश्चन जिहड़े इहदे नाल मिलदे जुलदे पेपर च पुछदे ने वो भी आपां देख लैने आ। क्वेश्चन आंदा है साडे कोले, इहदा आंसर सी आऊगा, आस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिहड़ा सब तो छोटा महाद्वीप है, ठीक है जी। अंटार्कटिका ऑप्शन च ही नहीं हैगा, इहदा मतलब उन्हें सीधा एरिया वाइज ही पूछे है। नैक्सट हुण क्वेश्चन आंदा है कि यूएसए की जिहड़ी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यूएसए की जिहड़ी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, एक किहड़ी नदी के कंढे ते है? पोटोमैक। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के कंढे ते है। क्वेश्चन आंदा है ब्लैक फॉरेस्ट, हुणी पिछे जे इन्हां च अग लग के चुकी है, पक्का होगा। ब्लैक फॉरेस्ट किहड़े देश च हन? जर्मनी च हन, याद रखियो। क्वेश्चन आंदा है दुनिया का सब तो वड्डा आईलैंड किहड़ा है? टापू, लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड, तो वह है जी थोड़े कोले ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जिहड़ा कि डेनमार्क देश का हिस्सा है। किहड़े देश का हिस्सा है? डेनमार्क देश का हिस्सा है। क्वेश्चन आंदा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया मारूथल किहड़े महाद्वीप च है या देश च है? तो आस्ट्रेलिया च। की च जी? आस्ट्रेलिया च। इंडिया अते पाकिस्तान दे विचकार जिहड़ी सीमा पाई जाती है उसका की नाम है? इंडिया ते पाकिस्तान दे विचकार पाई जाने वाली सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जिहड़ी कि अगस्त 1947 दे विच बछाई गई सी। इंडिया अते चाइना दे विचकार जिहड़ी बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। इंडिया ते चाइना दे विचकार मैकमोहन लाइन। उसी तरीके नाल एक होर पुछदे ने पाकिस्तान अते अफगानिस्तान दे विचकार जिहड़ी बाउंड्री है उसका नाम है डुरंड लाइन। डुरंड लाइन। इंडिया अते पाकिस्तान दे विचकार रेड क्लिफ, इंडिया अते चाइना दे विचकार मैकमोहन, ठीक है। उसी तरीके नाल पाकिस्तान अते अफगानिस्तान दे विचकार डुरंड लाइन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को आप 2 पार्ट्स दे विच कवर करांगे, ठीक है जी। तो पहला पार्ट उरे कवर है, वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो ते दसियो वीडियो के एंड दे विच कमेंट करके तुसी किहड़ी जगह तो ये वीडियो देख रहे हो। थैंक यू सो मच।